Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And today we are going to discuss 6 questions set from General Studies Paper 2, owing our commitment to the same understanding which we had practiced over series, and then we are trying to bring it in such a way which is going to help us to clear a very important and concrete platform for us. It will help you in not only retaining, it will help you to revise, it will help you to correlate, it will also help you to have a context. And if we are putting efforts in the right direction, then it will be completely and clearly, with lot of effortless what I should say job will be there in your mind. So this is not just in theory but in a practicality, I can say. So why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Why do you think? Okay, the question is not for the Secretary General, question is not for Rajya Sabha protocol officers, question is for administrative aspirants. Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss in this context the roles of estimates committee. So parliamentary committees are the soul for effective functioning of legislature to fulfill the aspiration and the constitutional mandate scientifically. Okay, fine, it's a good language and good verb, but then when we are using in all the answers such kind of language, then it may become repetitive, first of all. Secondly, if we are able to bring certain change, for example, if we can quote what Constituent Assembly debate said about parliamentary committee, or parliamentary committee helped in efficiency, something like that, something different, because this is at after a certain point of time, if you have to write 20 questions, and if you have to write introduction to say 10 questions, and if you are able to write these kind of introduction, then examiner may be able to understand that you are able to write it very easily. सो पार्लियामेंट्री कमिटीज का ओरिजिन आप लिख सकते हो, वेस्टमिनिस्टर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहले ओरल जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री कमिटीज के जो सोल में है वो है डिबेट, डिस्कशन, जो कि हमारे एंशिएंट डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही पार्ट है. तो वेयर एवर यू कैन ब्रिंग एनीथिंग, बट कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कोई हिडन एलिमेंट अगर पहले लाएंगे तो और अच्छा होगा. दे एक्ट एज कैटलिस्ट इन द फॉलोइंग मैनर: detailed debates and discussion and strengthen backward forward linkage with parliament. So we must write an example over here how parliamentary committees कैसे parliament को बांधती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है innovativeness, without any favor, without any fear, the member of parliament of different political parties, they are sitting together and they are trying to bring the best what is important for people's aspiration. Inclusion of experts to drive rational and democratic policy on law making, for example legal experts. तो legal expert जैसे आपका वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका if there is a debate about women rights, or even for that matter if there is a debate, if the parliament is considering to bring certain kind of reform with respect to ये जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता के जैसे बीएनएस का जो भी किया हमने, तो सब जगह कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई पीछे पीएसयूज की कमिटीज हैं, दे सिट डाउन, दे डिस्कस. और पार्लियामेंट्री कमेटी फिर ये भी देखती है कि कोई चीज़ हो चुकी है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल हो गया, या फिर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, या फिर डिफेंस की स्पेंडिंग हो गई, या फिर एग्रीकल्चर का कुछ हो गया, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या टूरिज्म पॉलिसी हो गई. ऐसा कुछ नहीं है जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ के डिस्कस नहीं कर रही है, और वो फिर लाके सरकार के समक्ष, पार्लियामेंट के समक्ष उसको रखती है. तो एफिशिएंसी बूस्टर ऑफ गवर्नेंस बाय प्रिसाइज फ्रेमवर्क डिजाइनिंग विद क्रूशियल प्रोविजंस इन टाइम बाउंड मैनर. बिल्कुल सही बात है, लेकिन बिना पार्लियामेंट्री कमेटी का एग्जांपल दिए कोई, या बिना कोई नाम लिखे, डेटा लिखे, हम थोड़ा सा लीवरेज एग्जामिनर के हाथ में दे रहे हैं दैट ही विल डिसाइड दैट हाउ मच स्कोर ही इज गोइंग टू गिव अस. तो थोड़ा सा वो जरूरी है, क्योंकि हमने पहले रिवाइज भी किया है और प्रीलिम्स के लिए भी हमने पढ़ा है, और वैसे भी हमें आइडिया तो है ही. फिर एस्टिमेट कमेटी की जब बात आती है, accountability of the government to the citizens through assessment reports, for example clarity delivered to citizens, very true, data based policy formulation of the past performance, effectiveness increases due to full proof methodology proof. तो अब एस्टिमेट कमेटी, नाम पे जाइए उसके, एस्टिमेट कमेटी यानी कि जो एस्टिमेट कमेटी है वो किस तरीके से किस तरीके से उन मुद्दों को सामने लेके आती है जिन मुद्दों से आप कह सकते हैं कि जो सरकार है और जो उसके मुझे कहना चाहिए जो उसका गवर्नेंस का मैंडेट है, उसको वो एक दिशा दिखाने में
सहायक होती है, यू नो, यानी कि वो स्क्रूटनाइज करती है, एस्टिमेट को स्क्रूटनाइज कर रही है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको स्क्रूटनाइज करेगी। यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि वो बजट को स्क्रूटनाइज करेगी एस्टिमेट कमेटी, यानी कि बजट में किस चीज को हमने कितना एस्टिमेट दिया, यानी पब्लिक स्पेंडिंग की एफिशिएंसी कैसे होती है, कैसे हो सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज्यादा कैसे, आप एक पैसा भी कैसे सही दिशा में खर्च कर सकते हो। इसीलिए एस्टिमेट कमेटी कैसी हुई, एस्टिमेट कमेटी फाइनेंशियल कमेटी हुई। और फाइनेंशियल कमेटी जो है, अगर इसके अलावा आप फाइनेंशियल कमेटी सोचोगे तो आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी याद आएगी, और आपको एक पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी याद आएगी। तीन कमिटीज हैं जो आप कह सकते हो कि ये तीनों कमिटीज आप जिनको फाइनेंस से जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन की जब आप बात करते हो, तो भाई अब आपने जब बजटरी एलोकेशन की बात की तो आप बोलिए कि 2014 है, 2019 है, और उसके बाद 2020, कुछ भी आप कोई भी साल लेके आइए, कुछ भी आप लेके आइए, क्योंकि उसके अंदर भी जो जो एस्टिमेट कमेटी है वो सेलेक्टेड मेंबर्स हैं उसके अंदर, और वो भी बहुत अपने आप में स्मार्ट होंगे, स्मार्ट बंदे होंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। और अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो एस्टिमेट कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना एग्जाम्पल दिए हमारे पास स्कोर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब हम इतना तो लेवल ला चुके हैं कि हम 50% आई मीन टू से 50% लोग, अगर ऐसा 60% लोगों से हम अच्छा लिख रहे हैं मान लीजिए, लेकिन टॉप जो 40% है, टॉप जो 30% है, उसको हम कैसे करें, उसको हम कैसे हम बीट करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि एस्टिमेट कमेटी ने जब कोई बात कही, कि एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट बाहर भी आती होगी, फिर एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट पीएमओ भी जा रही है, एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट डिफरेंट जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं उनके पास भी जाएगी, फिर वो उसको पढ़ेंगे, और उसके हिसाब से जो है फिर लोकसभा जो है उसको मतलब बात करेगी। उसके बाद जो है स्टडी विजिट्स हो सकती हैं एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स की, वो मेमोरेंडा दे सकते हैं, वो और क्या करेंगे, वो एक्सपर्ट्स का जैसे आपने बोला डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये एंगल आपको प्रैक्टिकली लेके आना पड़ेगा। इसके बिना लाए हमारा स्कोर बाकी लोगों के स्कोर से थोड़ा सा, मतलब बाकी लोगों का मतलब जो टॉप नॉच लोग हैं मेरे ख्याल से वो इसको लेके आएंगे। चलिए आगे। पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate protection and prevention of degradation to environment। बात बिल्कुल सही है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो फटाफट से दिमाग में एक सेकंड के अंदर अगर आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है वो क्या करने जा रही है जंगल में, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज कुछ करने जा रही है, और उसके बाद एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट तो अपने आप में है ही, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी वहीं पे कुछ कर रही है। सभी मिनिस्ट्रीज एक ही जगह पर कुछ ना कुछ एक समय पे भारत में कर रहे हैं। तो क्या सबका जो समन्वय है, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर टू वन एलिमेंट, इज इट हेल्पिंग द एनवायरमेंट टू बी प्रोटेक्टेड? चाहे फिर वो चिल्का लेक के आसपास का एग्जाम्पल हो, चाहे फिर वो तमिलनाडु में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने का हो, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ की बात आप सोचो एक सेकंड के लिए कि छत्तीसगढ़ में यार कोई जो कोल माइंस हैं, आयरन माइंस हैं, आयरन आई शुड से आयरन है, उड़ीसा में बॉक्साइट है, झारखंड में कोल माइंस हैं, तो क्या ऐसा करके हमें इसको करना पड़ेगा। तो देखते हैं हमने कैसे लिखा। Environment conservation has become the core of policy effectiveness, delivering good governance as ensured in the fundamental duty to protect the environment by citizens with climate। चलेगा चलेगा। This has led to policy contradictions and need to reforms and understood from the following illustrations। Intense industrialization along the river banks like Yamuna and Ganga of leather industries have almost left the prevention of water and एयर पोल्यूशन एक्ट रिडंडेंट। अब आपने उसको रिडंडेंट बना दिया, तो स्टेक होल्डर अलग अलग की बात हो रही थी, तो आप इसको ऐसे पुटअप करने की जगह अगर यही लेके आना था, बड़ा अच्छा था ये एग्जाम्पल। आपको नमामि गंगे प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा की बात करनी थी, कैसे वो एक अपने आप में रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, वो तो ये चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर आप बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, वो जो इंडस्ट्रीज हैं क्या वो वहां पे फुल प्रूफ काम कर रही हैं, तो आपका पहला एलिमेंट पूरा होता। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी स्टेट्स दैट drastic increase in concentration of heavy metals like uranium fluid and arsenic in river water because of misuse, because of heavy extraction। ये तो पंजाब में भी है, पंजाब में तो कैंसरस हो गया वाटर। सो वो बोलना है, लेकिन साथ में आपको वो भी बोलना पड़ेगा कि सही चीज करने की कोशिश क्या है, सही चीज करने की कोशिश है, गलत चीज भी ना चाहते हुए भी हो रही है। तो आई थिंक वंडरफुल एग्जाम्पल्स, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हैव लेड टू क्लैश बिटवीन, क्लैश नहीं हुआ है अभी वहां पर, अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में कोई क्लैश नहीं है, अभी तो ड्यू डिलिजेंस के साथ
इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट अभी सबमिट किया है. सो दिस इज बिलीव्ड बाय एक्टिविस्ट्स that there will be a great danger to not only local ecosystem but also to tribals. Carbon credits are believed to benefit ex post facto scenario when greenhouse gas emissions are already released in the atmosphere. ये एक एग्जांपल आपने ठीक है दिया. तो आपको अच्छे एग्जांपल्स दिए. एक आपको बड़ा एग्जांपल लेना था किसी, जैसे साइलेंट वैली प्रोजेक्ट था. अब साइलेंट वैली प्रोजेक्ट बाद में साइलेंस कर दिया गया खुद ही. आपको ऐसा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेना था जिसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ है, जिसके ऊपर जो है मतलब आपको पॉजिटिव एग्जांपल लेना है तो आप इसमें सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट ले लो कि उसको इतने सालों तक बोला गया लेकिन उसके बावजूद भी वो कंप्लीट भी हुआ और उसने एनवायरनमेंट को बचाया भी और उसने रीजनरेशन करने की कोशिश भी है. वहीं पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसके बगल में ही है. तो आपने बातें बड़ी अच्छी की, लेकिन वही फिर जैसा मेरा कहना है कि बहुत ही ज्यादा अगर हम बच के निकलना चाहेंगे और हम बहुत सिंपल और कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं देंगे तो उस अप्रोच से हमें बहुत, अगर हम वो अप्रोच नहीं लेंगे तो हमें मतलब हाई स्कोर एग्जामिनर एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन से कैसे दे देगा, क्योंकि ये भी बड़ा सही आंसर है, सब कुछ है इसके अंदर. लेकिन क्या ये एग्जाम्पल्स, जो क्वेश्चन जितने सिंप्लिसिटी से बोल रहा है, क्वेश्चन इतनी सिंप्लिसिटी से बोल रहा है कि पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन, ओके, पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन कह रहा है. तो अगर आप एग्जाम्पल ग्रेट निकोबार का दे रहे हैं तो उसमें पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आना चाहिए. कंपीटिंग स्टेक होल्डर, कंपीटिंग सेक्टर एंड स्टेक होल्डर्स, जैसे अर्रे अर्रे जो फॉरेस्ट था वो यहाँ का एग्जाम्पल है. एक पॉलिसी थी कि जंगल नहीं काटना है, एक पॉलिसी है कि मेट्रो शेड बनना चाहिए. दोनों पॉलिसी में जब कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, कुछ लोग आए भाई जंगल नहीं कटने देंगे, अगली सरकार आती है कहती है नो दैट्स फाइन बिकॉज वी नीड टू मूव ऑन विद द प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट एंड वी विल रीप्लांट इट. लेकिन क्या वाकई फिर आप उसको कर पाएंगे आगे? तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उठाने हैं जो कि बड़े ही फेमस, जैसे केदारनाथ चार धाम जो आपका हाईवे है वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से आपने बना दिया, लेकिन क्रैक आ रहे हैं, लैंडस्लाइड आ रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है? तो एक तरफ तो इन्वायरमेंट हो गया, एक तरफ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दोनों की पॉलिसी एक सेंटर है, एक स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, एक तरफ लोकल सोसाइटी के लोग भी हैं, एक तरफ जो केदारनाथ धाम और बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे जिनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट हो रही है, दे विल नेवर से कि कोई लोग आने कम करो. लेकिन एक लोग ऐसे भी होंगे जो आसपास के गांव के हैं जिनके घर टूट कर मतलब जोशी मठ से लेकर जरारें आ चुकी हैं और खतरे की घंटी बज चुकी है, वो चाहेंगे कि ना हो, सिविल सोसाइटी चाहेगी ना हो. तो दिस इज द काइंड ऑफ कमेंट करना है, वो भी आपको डिस्कस नहीं करना है, आपको इलस्ट्रेशन बताते हुए कमेंट करना है. लेकिन हमने जो है उसको प्लेनली डिस्कस किया. कमेंट हमें टिप्पणी करनी है, इलस्ट्रेशन दिया, आपको अपने आप से खुद से बात करनी है ऐसे आंसर में, एकदम सिंपल, आपको ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आपको देखना है कि अच्छा पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन, बस आपको ये लेके आना है कि कॉन्ट्रडिक्ट तो हुआ हुआ बिल्कुल हुआ, क्योंकि दो जब अलग अलग चीजें हैं और दोनों में कुछ, अगर जैसे आप मान लीजिए कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें एक तरफ न्यूक्लियर पावर जनरेट करने की बात की गई, इतना लंबा प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने बोला हम ये हो जाएगा, एक्सीडेंटल स्पिल हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा, ठीक है. लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया? बात आप समझे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का रोल क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का रोल क्या था? तो वो आप ऐसे दो तीन एग्जाम्पल देंगे तो इससे आप एग्जामिनर को बता पाएंगे कि भाई मैं जागरूक हूं, मुझे पता है कि भारत में, मेरे को अभी इतना नहीं पता कि फाइल में कैसे लिखा जाता है, लेकिन मेरे दिमाग में इतना डेटा है, मेरे दिमाग में ऐसे विचार हैं कि मैं अभी सिंपली बता सकती हूँ कि इस साल ये वाली बात हुई या इस डिकेड में ये वाली बात हुई और इसमें ये दो तीन एलिमेंट है. चलिए आगे. E-governance is not only about utilization of power of new technology, but also much about critical importance of the use value information of information. तो यानी इसमें आपको, इस आंसर में आपको इस आंसर में अंगूर के पेड़ पे अंगूर का गुच्छा पकड़ना है. पेड़ तो अंगूर का होता ही नहीं, खैर अंगूर की बेल होती है, क्रीपर ऑफ ग्रेप्स. तो बड़ा आसान भी क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक भी है. ध्यान रखिए जिन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो उनमें 3 नंबर से 10 में से ज्यादा आने के चांसेस बहुत थोड़े रहते हैं, क्योंकि हर कोई लिख रहा है उसको, क्योंकि वो बड़ा आसान है उसको स्टार्ट करना. लेकिन उसमें क्या वाकई में वो निकाल पाया? तो वो जान रहा है, एग्जामिनर ने ऑलरेडी बोल दिया है, इज नॉट अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ, नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी इसके बारे में बाद में लिखना है, बट इट इज मोर ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन. तो की वर्ड इसमें कायदे से 3 है. 1, यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी.
टू क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू, थ्री इंफॉर्मेशन। यानी न्यू टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और यूज वैल्यू, ये दो तीन कीवर्ड है। इनमें सबसे खतरनाक कीवर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा कीवर्ड है। यानी ई गवर्नेंस इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन, जैसे आपने लिखा, ई गवर्नेंस इज एन empowering टूल फॉर गवर्नेंस, ensuring availability, accessibility and affordability to all citizens equitably। बहुत बढ़िया बात है। एज इट इज बिलीव डेटा इज द न्यू ऑयल विच इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इट हैज इंक्रीज यूटिलिटेरियन गवर्नमेंट मॉडल। बहुत भारी, बहुत बढ़िया वर्ड्स हो गए, बात खत्म। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है, जैसे अभी आपने बोला कि सिविल एविएशन रूट्स थ्रू डेटा असेसमेंट हैव लेड टू उड़ान स्कीम एंड डाइवर्सिफाइड टू मोस्ट ट्रेवल्ड डेस्टिनेशंस एट अफोर्डेबल प्राइसेस। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि यूज वैल्यू बढ़ी। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज बाय सॉल्विंग एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर थ्रू आधार, यूज वैल्यू। Increase the welfare penetration, for example, financial inclusion, 90% bank account opened and DBT transfer never have eliminated hierarchical layers of middlemen। फिर लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये यूज वैल्यू है, लेकिन साथ में आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि कैसे यूज वैल्यू, यूज वैल्यू जब तक व्यक्ति विशेष के पास नहीं पहुंचती है, यानी कि जो वर्ग विशेष है, दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देन use value need to be enhanced, because use value will only cut down the cost. More is the use value, less will be the cost, less will be the noise। जैसे हम भी ई गवर्नेंस टूल का हमने यूज वैल्यू के हिसाब से काम किया कि व्हाट इज द यूज वैल्यू। सो नथिंग यू कैन से is of not use value because it is making sense। So fiscal prudence by solving financial leakage to the tune of 3 lakh crore। So all examples are amazing। Reducing multidimensional poverty 5%, indicator of family policy linking with data growth directly, therefore the use value information increased। ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा था कि ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, आपने बता दिया, बट ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू इंफॉर्मेशन। तो आपने सारा बहुत अच्छा पॉजिटिव, और आई थिंक इट्स वंडरफुली रिटर्न। बट कहीं ना कहीं अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेशन हल्का सा देती, हल्का सा, दैट यू नो देयर आर डोमेन्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एडटेक, या फिर आप कह लो कि ऑनलाइन एजुकेशन, या मतलब यू नो पैरेलल जो भी है, क्या उसकी क्वालिटी इंक्रीज हुई? तो या फिर आप कहते हैं हेल्थ केयर, मतलब दो तीन सेक्टर ऐसे जिन सेक्टर के अंदर अभी हमें पेनेट्रेशन करना बाकी है। सरकार चाहती है कि किसान तक, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो एग्जैक्ट, विदाउट एनी फियर एंड फेवर, उसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो एक दो एग्जांपल आई थिंक वो होने चाहिए थे जो हमें फ्यूचर का रास्ता दिखाते। बाकी आई थिंक द आंसर इज वेल डेल्ट, बट देन ऑलवेज रिमेंबर, इफ द क्वेश्चन इज नॉट क्यूरियस अबाउट फ्यूचर somewhere, then we may lose half marks। Can you move forward, please? India's relation with Israel of late have acquired a depth and diversity which cannot be rolled back। यानी अपने आप में पंच है, ये पंच पूछ नहीं रहा, बताने को बोल रहा है बस। India's relation with Israel are marked by dehyphenation of ties from Palestine in the modern world amid fast evolving। आपने शुरुआत अच्छी की, लेकिन शुरुआत आपके हाथ में थी, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज रिलेशन विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक। लेकिन आपने मुद्दा क्या उठाया? आपने मुद्दा उठाया कि पैलेस्टीन को हमने इजराइल के साथ डिहाइफिनेट कर दिया, यानी आंसर से बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आप अगर ये बोलते कि इंडिया बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज and having deep relations with Israel in terms of defense technologies, in terms of agriculture technology, in terms of scientific explorations, and also in terms of startup, which are serving mutually beneficial interest of both the countries in a very very crucial manner। क्योंकि तब आप रिलेशन को रोल बैक नहीं कर सकते। और आप अगर अगली लाइन में लिखते, जैसे आपने लिखा भी है, डीपनिंग ऑफ डिफेंस रिलेशंस इन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो पहले आप लिखते इजराइल इजराइल अंडरस्टैंड्स इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनाइजेशन। इजराइल समझता है कि भारत के पीछे वो खड़ा रहेगा, और भारत ने भी उसको अपने पीछे और साथ में खड़ा किया है। सुख दुख में यदि हमें चाहिए तो रात को भी वो पासवर्ड भेज देगा, इसलिए रोल बैक नहीं हो सकता।
दूसरा आपने डिसैलिनेशन प्लांट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो आप कहते कैसे इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया ऑन इश्यूज लाइक, ये तो एक है, दो एग्जांपल, पता नहीं अब दोनों कंट्रीज कहाँ कहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक में तो 2 साल बाद आएगा, डिस्कशन तो रोज हो रहा है। हमारे यहाँ के एम्बेसडर, वहाँ के एम्बेसडर, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, दे आर एवरीडे टॉकिंग, एवरीडे वीडियो कॉन्फ्रेंस, एवरीडे डिस्कशंस। 6 महीने में फिर एक फाइल बनेगी, मिनिस्टर साहब को फाइल रखी जाएगी, मिनिस्टर उसका नोट बना के पीएमओ भेजेंगे, फिर पीएमओ उसको वापस भेज देगा, फिर उसके बाद दोबारा बात होगी। तो वो सब तो आप कुछ भी लिखो। डाइवर्सिफिकेशन रिलेशंस टू हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट टू इंडियन डायस्पोरा लाइक इन नर्सिंग विद इमिग्रेंट्स फ्रॉम केरला, ये एक एग्जांपल है। ये आप कह सकते थे दैट द कंफर्ट जोन ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय इंडियन इमिग्रेंट्स और इंडियन डायस्पोरा इन इजराइल टेकिंग केयर इन स्पेशली इन हेल्थ केयर सेक्टर एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय इजराइल टू इंडियंस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली इन बंचेस। अभी गए हुए हैं ना 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की नौकरी करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल टाइज है थ्रू रीजनल कन्वर्सेशन इन वेस्ट एशिया लाइक आईटी U2, ये एक एग्जांपल भी बाद में आ गया। तो मतलब आपको फील कराना था थोड़ा सा, जैसे आप बात करते हैं कि ड्रोन आपने बोला, लेकिन जैसे अब वो फैल्कॉन है, एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है। फिर उसके बाद आप मोसाद की इंटेलिजेंस शेयरिंग की आपको वर्ड लिखना चाहिए था कि इसराइल डीपली विद बोथ द कंट्रीज म्यूचुअली शेयर डीप इंटेलिजेंस टाइज। एजुकेशन वो बाकी तो आपने सही लिखा है, तो चीजें यही रहेंगी। लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि रोल बैक क्यों नहीं कर सकते? रोल बैक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे पर पूरा विश्वास है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की आइडियोलॉजी के साथ मैच करते हैं। इसराइल स्टैंड्स फॉर सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट द प्रॉक्सी वॉर और अगेंस्ट द वॉर अगेंस्ट टेरर, दैट इज वाई इंडिया ऑल्सो स्टैंड विद इसराइल। वो बात तो आई नहीं पूरे उसमें। हम्म। आपने इधर उधर की जो है कहानियां बता दी, लेकिन आपने वही बात है कि उसकी सोल की बात नहीं की, भारत की सोल। तो वो इंपॉर्टेंट है बड़ा। तो ज्यादा पॉइंट मत लेके आइए भले, लेकिन ऐसी बात लिखिए कि दिल को छू जाए। हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट ट्राइब्यूनल्स curtail the jurisdiction of ordinary courts? हाउ फार डू यू एग्री? अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। हाउ फार डू यू एग्री? In the view of above, discuss the constitutional validity and competency of tribunals in India. In the light of above, कि they are curtailing the jurisdiction of ordinary courts. Tribunals are quasi-judicial bodies that ensure enforcement of laws but do not consider the court. They are thus extended arms of individual system. Expertise and specialization of function with NGT for environment justice, plastic ban, single use, reducing pendency of court cases, aids in efficiency in working of ordinary courts. Speedy justice with categorization of केसेस ऑफ सिमिलर नेचर। अभी जैसे आरसीबी के टाइम पे जब 3 पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया तो एक उठ के ट्रिब्यूनल में ही गया था, हम्म। उसको सस्पेंड किया उसने, उसकी क्या मैं सस्पेंड क्यों कर दिया मुझे? ट्रिब्यूनल ने शायद बाद में पता नहीं हाई कोर्ट या कुछ करके बोला भैया कुछ हुआ। तो आपको एग्जाम्पल भी आपको एकदम वैसा लेके आना है कि जो आपने जो चल रहा हो। हमारे जी। पास उसका बहुत समय है। बाकी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स जेन्युइन हैं, सारे पॉइंट्स आई थिंक पूरे एग्जामिनेशन का एक लेयर पूरा दिखा देते हैं। इसके बाद हम्म। इसमें कोई कमी नहीं रह जाती। टाइमली फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, ई ट्रिब्यूनल विद इंश्योर अफोर्डेबिलिटी। लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार डू यू एग्री, कि क्या हाउ फार डू यू एग्री कि ट्रिब्यूनल जो है उस ऑर्डिनरी कोर्ट की जगह ले लेते हैं, उसके जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करते हैं। तो आपको उसमें लड़ना है कि कर्टेल नहीं करते, एड करते हैं। तो कैसे एड करते हैं? फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और उसकी कंपिटेंसी का मतलब वही है कि अगर ट्राइब्यूनल बहुत सारी चीजें गई हैं, चाहे फिर वो कॉर्पोरेट केसेस जाते हैं ट्राइब्यूनल्स में, अलग अलग तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं, चाहे फिर वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, चाहे फिर वो सिविल सर्विसेज ट्राइब्यूनल है, कितना सक्सेसफुल है वो, या वो ऐसे ही बस पैसा बिठा रखा है, जज साहब बैठे हुए हैं, धंधा चल रहा है। और वी हैव टू ब्रिंग दोज फाइन लाइंस। जी। चलिए आगे। So I think let me read the last paragraph. It is well written. Let's go to the last one. So court of record status like High Supreme Court, High Court can ensure repetition of similar nature cases no longer. Therefore, tribunals and their working have complemented the rule. I think yeah, on track. लेकिन वो ये थोड़ा सा जो मैंने बोला। India and USA are two large democracies. Examine the basic tenets of which
on which the two political systems are based. Political system ही पूछ डाला सीधा, सबसे सिंपल. Epitome of welfareist governance model that shares some common similarities and differences. Okay, चलिए. Parliamentary form of government where executive is accountable to legislature. Presidential form of government with complete separation between executive and parliament. Government has to prove majority Lok Sabha, executive and parliament accountability to each other. Single citizenship and unitary feature, dual citizenship, federal feature. Indestructible union of states, union of districtable states. Indestructible union of indestructible states. अच्छा, Texas तो मैंने सुना है secede कर सकता है, पता नहीं, I'm not sure. तो तभी तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ वो तो मैं काम मना कर रहा हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग. देख सकते हैं हम लोग. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी चैप्टर. पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं. एग्जामिनेशन काइंड ऑफ कंडीशन आई थिंक वेल रिटन, और पढ़ने के बाद एक बार तो और लेवल उठ जाता है. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मल्टी पार्टी, प्रमोट डेमोक्रेटिक पॉलिटी, देयरफॉर बोथ इंडिया एंड यूएसए फॉर्म्स वर्ल्ड्स मोस्ट थ्राइविंग. वेल रिटन, गुड ऑब्जर्वेशंस, गुड आइडियाज, ऑन ट्रैक. अब ये प्रश्न है कि समितियों का है, तो भारतीय संसद द्वारा कानून बनाने और संशोधन करने की क्षमताएं प्रदान की गई हैं. शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से प्रस्तावना और डीपीएसपी में दिए प्रावधानों को लागू करने और शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए समितियों का निर्माण. ठीक है, आपने इतना बता दिया. अब ये जो प्रकलन समिति है, 30 सदस्य लोकसभा, 10 सदस्य राज्यसभा. ठीक है. व्यय के अनुमानों की जांच, समावेशी विकास का प्रावधान, बदलाव और सुधार की अनुशंसा करती है, पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है. तो पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन वही बात है, और थोड़ा सा डिटेल जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया वो होना चाहिए था. जब बात आती है कि पर्यावरण के संरक्षण की, जो हमने पहले डिस्कस किया, तो पार्ट 4 डीपीएसपी 48A 1986 आपने बता दिया. केन बेतवा लिंक कनाल, 50,000 वृक्षों की कटाई, संवेदनशील स्थान पे पेंच वन्य जीवन अभयारण्य संबंधित. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. पेंच में हुआ था, सारा का सारा टाइगर रिजर्व डूबने की बात थी, पेंच टाइगर रिजर्व. दूसरा आपने एग्जाम्पल दिया, वनों के व्यवसायीकरण के कारण जंगलों में लगने वाली आग, हजारों हेक्टेयर जंगल का नाश होना. झूम खेती पूर्वी राज्यों में प्रचलन है, बिल्कुल है, झूम कल्टीवेशन का. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी. गडगिल कमेटी, पंछी कमीशन, एनजीटी, वनों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, वन संरक्षण अधिनियम 2006, और पीसा, पी ऐसे होना चाहिए, पीए नहीं, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, बफर जोन का निर्माण करना, विकास के साथ संबंधित क्षेत्रों की पहचान, अंडमान निकोबार परियोजना, विविधता रक्षा. आई थिंक वेरी डेप्थ में लिखा गया है, अच्छा अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है. ई शासन की यदि हम बात करते हैं तो 51A4 में विज्ञान प्रौद्योगिकी का बढ़ावा, शासन में इसका प्रयोग, नागरिकों तक प्रभावी ढंग सेवाओं को जवाबदेही बढ़ाना. ई शासन, नागरिकों तक सेवा, सरकार की पहुंच तक आसान बनाना. सीएम विंडो, आरटीआई के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता, सूचना प्रदान करना, कौशल को बढ़ाना. इंटरनेट, किसानों के भिन्न भिन्न भाषाओं में फसल, मौसम, मूल्यों की सूचना प्रदान करना. जनसंख्या साक्षरता. तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, ऊपर भी एग्जाम्पल अच्छे थे, लेकिन ये एग्जाम्पल आई थिंक थोड़े इनोवेटिव हैं, क्योंकि शायद आप पर मेंस अभी लिखने का प्रेशर नहीं है. और जो भी आप मान लीजिए, रेड कॉरिडोर, टावरों के माध्यम को जोड़ना, भ्रष्टाचार को कम करना, पेपरलेस कार्यों को बढ़ाना, कागजों के कार्यों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार को रोकना, भू विभाग जीआईएस डाटा को ऑनलाइन. तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, नॉन रिपीटेटिव हैं. आई थिंक वी कैन ऑलवेज लुक इनटू इट, और हमारा आंसर और भी अच्छा हो सकता है. भारत इजराइल की बात की तो बहुपक्षीय नीति है. अनुच्छेद 51 डीपीएसपी, विदेशी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध. भारत इजराइल बहुआयामी रणनीति, रक्षा एवं सुरक्षा, विदेश मंत्रालय द्वारा डीआरडीओ और इजराइल का संगठन, बड़ी संख्या में भारतीयों के इजराइल में होना, व्यापार, मुफ्त व्यापार समझौता, पर्यटन. ठीक है, ऊपर भी बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पॉइंट हमें मिले, बाकी मैंने बता दिए. लोकतंत्र की अवधारणा, अगर यूएसए की बात करें, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, लोगों द्वारा शासन, बराबरी, साझेदारी, कानून, उसके बाद कानून का शासन, संविधान की व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेसी को रोकना, कानून द्वारा स्थापित शासन. भाई गुड पॉइंट, ऊपर भी पॉइंट अच्छे थे. सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक समानता प्रदान करना. तो यानी ऊपर के पॉइंट से यहाँ को जोड़ा जा सकता है. आगे चलिए, आगे चलिए. भारतीय राज्यों का संघ है, और संघ के पास शक्तियां हैं. संघीय गणराज्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न्यायपालिका आप कह सकते हैं कि इस तरीके से हो सकता है. चलिए, Sumansi, what do you say if we take up the level a little bit more and we try to understand it? So firstly, to focus on concreteness of points. Very good. जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, तो कंक्रीट और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. सेकंड, कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे स्कोप है कि फ्यूचर ओरिएंटेशन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसको उस तरीके से एंडिंग होनी चाहिए कि फ्यूचर. और वो भी आप आराम से कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ सर. ओके. और कोई पॉइंट ऐसा जो आपको लगा हो कि कैन यू प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन दैट हाउ यू कैन ब्रिंग देम इनटू योर आंसर्स बाय व्हेन वी आर वर्किंग नेक्स्ट?
Sir, वही कि when I'm writing the answers, I have to keep these few points in my mind while I'm writing. So that will help me. How will make sure that they are in your mind? So I've written them down at one place, so I'll Okay. just go through them before writing the answers. दिव्या? सर इंट्रोडक्शन पार्ट जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा और यूनिकनेस ला सकते हैं, और जो स्पेसिफिक टॉपिक से जैसे टर्मिनल वाला था तो वो किस तरह से बेनिफिट करता है। Yeah, but let me assure you that 70% answers are written not better than this. Okay, so these are one of the good ways, and we are creating a kind of a very good database understanding. But the only my point is to raise the bar, to refine it further. Okay, so that is all I would like to say. And again, the goal is to bring static and dynamic elements, which together, together can bring a lot of clarity in what we are writing. So thank you very much for being with Ansarkari, and through our different orientation and different programs and ideas. The goal is again to mark more clarity, more happiness, and more pleasant attitude towards success with time. Thank you very much.